Namaskaram. Welcome to this new episode of Advantage, where we learn how to read newspapers. In this episode, we have an editorial from The Hindu of 14th जुलाई 14th जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है in which the writer is talking about the state and stage of secularism in India. In recent times में there is a lot of debate going on that the word secularism which was added to the preamble in 1976 should be deleted now. So उसी issue पे this is an editorial. So I'm not going to analyze this editorial today. I am just I will just try to let you know I will just try to let you understand that what could be the important stuffs that can be extracted from this editorial. Like इस editorial से ऐसे कौन कौन से points है जिनको आपको extract करना है. You should also be very much careful that what are the points or the statements which are kind of biased or extreme terms which you should avoid. सो लेट्स स्टार्ट. शुरुआत में सम कोटेशंस दिए हुए हैं, नॉट दैट इम्पोर्टेंट. गॉड इज डेड, गॉड रिमेन्स डेड, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. फिर नेहरू जी के बारे में कहा गया है कि लेट फ्रॉम द फ्रंट इंडियाज अडॉप्शन ऑफ सेकुलरिज्म. अच्छी बात है, बट अगेन इसको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है. हमारा पर्पस होना चाहिए आर्टिकल पढ़ते टाइम अच्छी अच्छी पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करें. देर आर लॉट्स ऑफ गुड पॉइंट्स, बट वी शुड बी ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट the points which are most important and the points which can be written in your answers, mains answers. So Nehru's strong views on religion did play a significant role in India's choice of secular policy. So this is a good point. अगर आप इसको फ्रीडम मूवमेंट से कनेक्ट करना चाहें तो वहाँ पे बता सकते हैं कि नेहरू का जो स्ट्रॉन्ग व्यू था रिलीजन को लेकर के, दैट प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. Though the Supreme Court has said more than once that the term secular in India does not connote either a strict separation between religion and state, like in France, or non-establishment of religion, like in the United States. अब दो बातें हैं यहाँ पे. सुप्रीम कोर्ट का कहा गया है दैट इज ओके, बट यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं. कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द टर्म सेकुलर इन इंडिया डज नॉट. कौन से दो कॉन्सेप्ट से? फर्स्ट इज strict separation between religion and state. This is the first concept, जैसा कि फ्रांस में है. सेकेंड वन इज नन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन लाइक इन द यूनाइटेड स्टेट्स. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है इज नीदर लाइक दैट ऑफ फ्रांस नॉर दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. अब फ्रांस में कैसा है? स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट. यूएस में क्या है? नन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन. तो दो अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, और यू कैन रादर से दैट देयर आर दो गुड वेरिएशंस, गुड conceptual, गुड टाइप्स, टू कैटेगरीज ऑफ सेकुलरिज्म. अब ये दो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, एंड यू कैन राइट अबाउट दीज टू कॉन्सेप्ट्स इफ अ रिलेवेंट क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन. सो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इंडिया सेकुलरिज्म डज नॉट बिलोंग टू दीज टू. स्टिल द डिबेट ऑन आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑफ सेकुलरिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी. तो जैसा अभी जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स अगो, जस्ट एज आई मेंशन दैट ड्यूरिंग इमरजेंसी इन 1976, couple of terms like secularism was inserted in the preamble. So there are some political class in India which considered कि this is an artificial imposition of secularism. क्या मतलब होता है artificial secular imposition? Artificial imposition of secularism मतलब secularism was not in the spirit of constitution, the spirit of secularism, the term secularism was not in the original constitution, and during emergency times it was imposed by the government using its majority. तो ये हो गया आर्टिफिशियल इम्पोजिशन. तो जिस आर्टिकल में इस न्यूज एडिटोरियल में the writer will tell you that this is not artificial imposition of secularism. It is actually secularism in spirit has already always been there in the constitution. उसी चीज को यहाँ पे बताएंगे. तो this is the writer is connecting it very beautifully with Ashoka's Dhamma and with the noble ideas of India's freedom struggle.
दो चीज़ों से बहुत अच्छे से कनेक्ट किया गया है, अशोका धम्मा से और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से। दोनों हिस्ट्री के पार्ट्स हैं। हाउ द राइटर कनेक्ट्स दिस स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अशोकास धम्मा एंड टू द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये बहुत अच्छे कंसेप्ट्स हैं, बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं जिनको वी शुड अंडरस्टैंड। सेक्युलरिज्म स्पेल्स आउट ऑटोनॉमी, ठीक है। अब वी शुड अवॉइड फोकसिंग ऑन दीज टर्म्स, हिंदुत्व, थिंक दैट माइनॉरिटीज हैव गॉट सम स्पेशल। इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। As far as possible, try to avoid mentioning any religion, name of any religion in your answers. To some extent, you can mention Hinduism, Buddhism, Islamism, you can mention. But these extreme words, Hindutva, like targeting some particular religion or targeting some particular agenda in extreme terms, you should avoid as far as possible. कभी रेयर कॉन्टेक्स्ट में आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी, बट मोस्टली यू शुड अवॉइड। Supporters of theocratic state do not understand that secularism is basically good for religion as it protects religions from state domination and interference. Very good point. बेनिफिट ऑफ सेक्युलरिज्म की अगर बात करें तो आप यहाँ पे एक पॉइंट अपने नोट्स में डाल सकते हैं that secularism is very good for religions because secularism protects religions from state domination and interference. रिलीजियंस रिमेन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस अंडर सेक्युलरिज्म। बहुत अच्छा पॉइंट दिया गया है। अगर आपसे सेक्युलरिज्म के प्रोज अगर कभी एक क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि सेक्युलरिज्म का प्रोज ये है कि रिलीजियंस रिमेन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस। आवर सेक्युलरिज्म इंश्योर्स ऑटोनोमी ऑफ द हिंदू रिलीजन एंड द प्रोपोनेंट्स ऑफ हिंदू। अगेन हिंदुत्व को मतलब आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बट हाँ यहाँ पे जो कहा गया है कि इंश्योर्स ऑटोनोमी ऑफ हिंदू रिलीजन, नॉट ओनली हिंदू रिलीजन बट ऑल्सो टू अदर रिलीजन्स। सो ये थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपको यू शुड बी वेरी मच केयरफुल कि आप इस पॉइंट को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। नाउ हियर आर सम एग्जाम्पल्स। हिस्ट्री से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो बताता है कि कैसे पास्ट में भी रूलर्स ने जो है कैसे रिलीजन से डिटैच होकर के कुछ अपना कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए थे। जैसे महमूद गजनी एंड इल्तुतमिश डिफाइड द कैलिफ एंड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ किंग। ज़वाबित और स्टेट मेड लॉज प्रिवेल ड्यूरिंग शरिया ओवर शरिया ड्यूरिंग मिडिवल इंडिया। तो कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इनको अब अगर आप स्टेट वर्सेस रिलीजन के ऊपर कभी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये कुछ रेफरेंसेस दे सकते हैं एज एग्जाम्पल, यूजफुल होगा आपके लिए। बट यहाँ पे ये जो कहा जाएगा कंसेक्रेशन सेरेमनी ऑफ राम टेम्पल जनवरी, थियोलॉजिकल व्यू शंकराचार्य, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट ये महमूद गजनी इल्तुतमिश ने जो अच्छे अच्छे जो जो डिसीजंस लिए, पॉलिसीज लिए, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिकॉज इसके हिस्टोरिकल फैक्ट सब कुछ अवेलेबल है। बट यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया गया है, दिस पॉइंट इज मोस्टली लाइक काइंड ऑफ एक परसेप्शन है राइटर का। Is the salvation of souls really the mandate of modern states? Again, these many stuffs are not important. राइटर ने अपनी बातों को कन्वे करने के लिए, अपनी बातों को प्रूव करने के लिए कुछ फॉरेन कंट्रीज से, कुछ फॉरेन राइटर्स के कुछ कोटेशंस दिए हुए हैं। आप इनको पढ़ लीजिए, पढ़ के समझ में आता है तो अच्छी बात है, बट डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर दीज और डू नॉट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दीज इन योर नोट्स। बिकॉज अगर हर चीज़ को अगर आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करते चलेंगे तो योर नोट्स विल बिकम वेरी मच बल्की और आप सब कुछ रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो यू कैन इग्नोर दिस। Now, moving to next column, next heading is the importance of Ashokan edicts. Okay, so as we mentioned earlier, like the writer connects it to history. So, how the secularism, spirit of secularism, concept of secularism in India can be connected to Ashokan edicts? Should we reject secularism because the term was not used in original constitution? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस पे हो सकता है क्वेश्चन ही फ्रेम कर दे यूपीएससी, because in recent times में there are lots of debate going on secularism. So should we reject secularism because the term was not used in the original constitution and the term secularism was inserted in 1976? क्या ऐसा होना चाहिए? अब इसके लिए में आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स दोनों आपको तैयार रखने चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ काउंटर आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं, तो एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या काउंटर आर्गुमेंट्स हैं। अशोका के टाइम में सीड्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म
राजीव भार्गवा ने ऐसे कहा। ओके, इन चीज़ों इंपॉर्टेंट है, राजीव भार्गवा ने कुछ लिखा है, बट आपको इन चीज़ों को याद नहीं करना है। ऑलवेज फोकस ऑन द फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट। जितना आप पॉइंटेड फोकस रखेंगे, उतना ही आपको याद करने में सुविधा होगी, और उतनी ही आप चीज़ों को अच्छे से आंसर्स में रेप्लिकेट कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? रिजेक्टिंग द आइडिया ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन। रॉक्स एडिक्ट 7 में अशोका की धम्मा पॉलिसी के अंदर ये बात जो है क्या है? रिजेक्टिंग द आइडिया ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन। द रॉक एडिक्ट 7 said that all religions should reside everywhere, for all of them desire self control and purity of heart। बहुत अच्छा पॉइंट है अशोकास धम्मा की पॉलिसी को कैसे इंडियन सेक्युलरिज्म से कनेक्ट किया गया है। Then it talks about Rock Edict 12, which prohibited glorification of one's religion and condemnation of other religions। Again, very important point। अगर कभी भी स्टेट और रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन आता है या सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन आता है, तो यू कैन लाइक इजीली यू कैन राइट, यू कैन टेल दैट हाउ यू कैन इजीली कनेक्ट इट विद अशोकास धम्मा पॉलिसी। बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। Furthermore, the writer takes us to freedom movement, Motilal Nehru's committee। Again, in Motilal Nehru's committee report में फर्स्ट अटेम्प्ट टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एक फैक्ट है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। मोतीलाल नेहरू कमेटी के चेयरमैन मोतीलाल नेहरू थे। कमेटी क्यों कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसके बेसिक रिकमेंडेशंस क्या थे, क्या बैकग्राउंड था, ये चीज़ें आपके मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस में, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स में होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। पर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, राइटर क्या कह रहे हैं कि दिस मोतीलाल नेहरू कमिटी ने अपने रिकमेंडेशन में बोला था, देयर शैल बी नो स्टेट रिलीजन फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया और फॉर एनी प्रोविंस इन द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, नॉर शैल द स्टेट इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडर एनी रिलीजन। अब ये बहुत लंबा है। मोतीलाल नेहरू कमेटी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे क्या मोर इंपॉर्टेंट एक चीज ये हो गई कि मोतीलाल नेहरू कमेटी का सेक्युलरिज्म को लेकर के क्या रिकमेंडेशन था। अगर आप पूरा याद करने जाएंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। कमिटी रिकमेंडेशन के क्लॉज 411 में क्या था, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ओवरऑल क्रक्स यहाँ पे याद करना है। हियर यू शुड बी फोकसिंग ऑन क्रक्स। क्रक्स क्या है कि मोतीलाल नेहरू कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी, वन ऑफ द रिकमेंडेशंस वाज दैट इंडिया शुड बी ए सेक्युलर स्टेट। मोर और लेवल यही एक इसका क्रक्स है। देन इट कम्स टू कराची रिजोल्यूशन। कराची रिजोल्यूशन कांग्रेस का था, कब हुआ था? 1938 में। हाउ इट इज रिलेटेड? अगेन इसके रिजोल्यूशन नंबर 29, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट इसका रिकमेंडेशन दैट स्टेट शैल मेंटेन न्यूट्रलिटी इन रिगार्ड टू ऑल रिलीजन्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो if you are writing an answer on secularism in India and you are thinking that you should connect it with the ideals of Indian freedom struggle, then two examples you can give for sure. One is Motilal Nehru Committee report, second is Karachi resolution. रेस्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हाँ, अगेन हिंदू महासभा, वीडी सावरकर, इनके भी चीजें इंपॉर्टेंट है। देयर शैल बी नो स्टेट रिलीजन। सो टेक्निकली थ्री, वन इज मोतीलाल नेहरू कमेटी, सेकंड इज कराची रिजोल्यूशन, एंड थर्ड इज हिंदू महासभा का जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था 1944 का, उसमें भी ये चीज कही गई है। अब हिंदू महासभा क्या है, वीडी सावरकर क्या है, कराची रिजोल्यूशन के जहाँ और बाकी के रिकमेंडेशंस क्या थे, दीज आर पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री सिलेबस। उन चीजों को आपको तो पढ़ना ही है। पर यहाँ सेकुलरिज्म से उसका कनेक्शन एक ब्रीफ तरीके से दिया गया है। दिस यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर नोट्स। देन अक्टूबर 1979 1949 में प्रियम्बल के ऊपर जो डिस्कशन हो रहा था, तो क्या क्या हुआ, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू कैन इग्नोर दिस, बिकॉज इसमें यही हुआ। इसमें इस पैराग्राफ में ही कहा जा रहा है कि जो HB कावत साहब थे, उन्होंने कहा कि प्रियम्बल शुड बिगिन विद द वर्ड्स इन द नेम ऑफ गॉड, और ये उनका ये प्रपोजल डिफीट हो गया, 68 लोगों ने उसके अगेंस्ट वोट कर दिया। अगेन दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, इन चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। यू शुड नॉट ट्राई टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग गिवन इन एन आर्टिकल, बिकॉज अगर आप सब कुछ याद करने की कोशिश करेंगे, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा और आपका टाइम भी जाएगा। 3 years प्रायर टू द इंसर्शन ऑफ द वर्ड सेक्युलर। अब यहाँ पे एक फैक्ट है, इंसर्शन ऑफ द वर्ड सेक्युलर कब इंसर्ट हुआ था, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। 1976 अंडर द जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के टाइम में, उस टाइम इंसर्ट हुआ था। अगेन ये एक फैक्ट है कि जो 42nd अमेंडमेंट था
42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कौन-कौन से वर्ड्स ऐड हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में? अभी एक फैक्ट है, जैसे उसमें इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सेक्युलरिज्म, इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, ये जो 3-4 जो 4 वर्ड ऐड हुए थे, उनको आपको एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। एनीवेज, मूविंग अहेड, सो जब इंसर्ट हुआ 1976 में, तो उसके 3 साल पहले ही, मतलब इन 1973 में केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया। मतलब केशवानंदा भारती केस आया 1973, उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या क्या कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अमेंडमेंट तो बाद में हुआ, उसके पहले ही केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सेकुलरिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Moreover, the words federal, judicial review, rule of law to have not been used in the constitution. अब ये सारे वर्ड्स भी हैं, फेडरल, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन इन टर्म्स के बारे में तो बोला नहीं गया है, जैसे प्रियम्बल में तो ये चीजें मेंशन है नहीं, बट दीज आर आल्सो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ एक जुरिस्डिक्शन मॉडल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। इस पूरे पैराग्राफ में कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं कि उनको पढ़ना कैसे, एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। तो दो तरीके का मॉडल है, सेपरेशन मॉडल और जुरिस्डिक्शन मॉडल। दो अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। सेपरेशन मॉडल मतलब रिलीजन और स्टेट आर बोथ एंटायरली सेपरेटेड। जुरिस्डिक्शन मॉडल मतलब अलग अलग जुरिस्डिक्शन है सबका। कैसे अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, तो उसको यहाँ पे ये बतलाने की कोशिश करेंगे। कुछ फॉरेन दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर किया जाएगा, दूसरी कंट्रीज के पॉलिटी से कंपेयर किया जाएगा। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटी विद दैट ऑफ अदर पॉलिटी इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अगर जनरल स्टडीज पेपर 2 का सिलेबस अगर आप देखेंगे, तो उसमें देर इज वन सेंटेंस लाइक कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी विद दैट ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी कंट्रीज के साथ। तो उससे रिलेवेंट कुछ अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगेन ये हिंदुइज्म, हिंदुत्व, इन चीज़ों को इग्नोर कीजिए, मेन मेन पॉइंट्स को आपको फोकस करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ इंग्लैंड, where the king is the defender of faith। ये दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ एक जो पॉइंट यहाँ पे है कि किंग इज द बट रिकॉग्नाइज इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स। तो इंग्लैंड में क्या है कि ऑफिशियल चर्च ऑफ इंग्लैंड, किंग जो है डिफेंडर ऑफ फेथ है। डिफेंडर ऑफ फेथ मतलब कहीं ना कहीं दिस इज रिलेटेड टू रिलीजन। ओके, तो डिफेंडर ऑफ फेथ बट रिकॉग्नाइजेस इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स, इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड प्रोहिबिटिंग ऑल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो इंग्लैंड का एग्जांपल, इंग्लैंड के एग्जांपल में क्या है कि द किंग इज कंसिडर्ड अ डिफेंडर ऑफ फेथ, और रिसेंट टाइम्स में ऐसा मतलब हो भी रहा है कि किंग इज बीइंग कंसिडर्ड हेड ऑफ द चर्च इन इंग्लैंड। मतलब क्लियर कट उनका वो दिखाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल में दिखाया जा रहा है, क्लियर कट उनका एसोसिएशन दिखाया जा रहा है रिलीजन से, क्रिश्चियनिटी से। बट इंग्लैंड इज ऑल्सो इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो एक एग्जाम्पल है। दिस इज अ काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन मॉडल, काइंड ऑफ कि एक जुरिस्डिक्शन भी दिया रहा है जा रहा है, पर इंडिपेंडेंस बताया जा रहा है कि आपको फ्रीडम रहेगी। देन इट इज अबाउट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल बिगिंस विद द नेम ऑफ मोस्ट होली ट्रिनिटी। Okay, but a state cannot endorse any religion or discriminate on religious grounds. ओके, तो एक आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल यहाँ पे है। देन वी हैव ग्रीस का एग्जांपल। इन ग्रीस द ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च एज द डोमिनेंट रिलीजन। ठीक है, इतना ही पकड़ना है, बाकी इन द नेम ऑफ होली ट्रिनिटी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रक्स पकड़ना है कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च इज द डोमिनेंट रिलीजन एज पर ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशन, स्टिल द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड ऑनर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन एंड गिव्स फ्रीडम। ठीक है, तो एक तरफ से तो ऑर्थोडॉक्स चर्च को उसने डोमिनेंट रिलीजन मान रहा है ग्रीस का कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरी तरफ गिविंग राइट टू लाइफ, लिबर्टी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। वेस्टर्न थ्रेस, मुफ्ती, इस्लामिक लॉ, ये चीज़ें वहाँ के इस ग्रीस के कॉन्स्टिट्यूशन को और इलेबोरेट किया गया है। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सब कुछ नहीं पकड़ना है। अगर आपको कंपैरिजन करने की बात आती है, तो इंग्लैंड का भी एक अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, आयरलैंड का दे सकते हैं, एंड ग्रीस का दे सकते हैं। नीचे इस आर्टिकल में आते हैं, तो
द राइटर इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एज वेल. अच्छा एग्जाम्पल है पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन. मुस्लिम्स ही हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, बट स्टिल says that a state shall safeguard the legitimate rights and the interest of minorities. अच्छी बात है, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल दिया गया है, बट मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल अपने आंसर्स में देंगे या किसी के सामने बोलेंगे, तो आपको सामने से दूसरा व्यक्ति सीधा काउंटर आर्गुमेंट देगा कि इतने ही माइनॉरिटी के राइट्स अच्छे हैं, तो फिर माइनॉरिटीज को इतना कन्वर्जन क्यों हो रहा है, माइनॉरिटीज को इतना परसिक्यूट क्यों किया जा रहा है वहाँ पे. तो पाकिस्तान का एग्जाम्पल आप अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज भले ही पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में इन थ्योरी वहाँ पे एक ऐसा राइट्स और ऐसा सेफगार्ड दिया गया है, बट इन प्रैक्टिस इट इज नॉट एट ऑल बीइंग इम्प्लीमेंटेड. तो राइटर ऑथर ने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है पाकिस्तान का, बट आई वुड सजेस्ट यू दैट आप इसको अवॉइड कीजिए. देन श्रीलंका का एग्जांपल दिया गया है रिगार्डिंग बुद्धिज्म. फोरमोस्ट प्लेस है बुद्धिज्म का इन श्रीलंका में, बट प्लेसेस एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्ध शासन. गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है. ओके, तो श्रीलंका का भी एक एग्जांपल दे सकते हैं आप. नेक्स्ट, आवर सेक्युलरिज्म बेस्ड ऑन अशोका धम्मा. तो इस यहाँ पे आर्ट राइटर अपना कंक्लूजन देंगे. तो सबसे पहली बात, हमारा जो सेक्युलरिज्म है मीन्स इंडिया सेक्युलरिज्म इज बेस्ड ऑन अशोका धम्मा. थोड़ी देर पहले हमने दो रॉक एडिक्ट का एग्जांपल देखा. डिजाइन टू अलाउ पीपल टू लिव टुगेदर इन सिविलिटी एंड प्रमोट इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स. ठीक है. द स्टेट मस्ट रिमेन रिलीजन न्यूट्रल. दैट इज तो ओके, स्टेट को रिलीजन न्यूट्रल रहना है. इंडियाज opposition to Pakistan was based on the separation of religion and state. This is also very important point from modern Indian history perspective. अगर आपका सेकुलरिज्म पे अगर क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें एग्जांपल भी दे सकते हैं. इंडिया शुड maintain distance with religions. India should be religion neutral, because when the Pakistan was getting formed, India opposed its formation because of the religion aspect. The framers of the constitution too intended a secular state and not a theocratic state. अगेन यहाँ पे इसके आगे पार्टी पॉलिटिक्स की बात आ रही है, तो आप इनको यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं. तो इस पूरे आर्टिकल में यहाँ पे जो कंक्लूजन दिया जा रहा है, एक तो अशोका धम्मा की बात की जा रही है, एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात की जा रही है, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, फाउंडिंग फादर्स थे, उनका इंटेंशन क्या था, इन चीज़ों की यहाँ पे बात की जा रही है. तो इस आर्टिकल में वी जस्ट सॉ दैट व्हाट टू रीड, व्हाट टू नॉट टू रीड, एंड व्हाट टू मेक नोट ऑफ, एंड व्हाट वी शुड कंप्लीटली डिस्कार्ड. बिकॉज अनलेस एंड अदरवाइज वी आर आइडेंटिफाइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इंपॉर्टेंट तो सब कुछ लगेगा, बट यू शुड बी फोकसिंग ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट. बिकॉज न्यूज़पेपर आर्टिकल यू आर रीडिंग ऑन अ डेली बेसिस. हर आर्टिकल से अगर सब कुछ करेंगे तो टाइम भी आपका जाएगा, एंड इट विल बी योर नोट्स विल बिकम वेरी बल्की. तो इस आर्टिकल का पर्पस यही था, इस वीडियो का पर्पस यही था, आपको बताना दैट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ से निकालने हैं. तो सेक्युलरिज्म को अच्छे से कनेक्ट किया गया है इसमें, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, एंड ऑल्सो गिविंग एग्जाम्पल विथ अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस. आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल. इस पूरे आर्टिकल की समरी हैज बीन गिवन इन आवर टेलीग्राम चैनल. यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.